Hope you're able to listen to me well. Are you getting me? Yes, hope you are getting me, my voice well. Okay, let's move. Let's move with the topic. Yesterday, we were discussing the topic known as, here we can say, density or whatever the space is acquired in the unit cells. We have seen that whatever the solid we have made, that solid has, that solid has the particles. Every solid has a close packing arrangement of the particles. That is closest packing of the particles. We have seen that. So we have seen that first is a unit cell. Unit cell is a smallest geometrical structure which is present in each and every solid. And mathematician Bravis has given there are mainly 7 types of unit cells, and including the subtypes, we got 14 types of unit cells. Out of that, here in the chapter we are discussing cubic unit cell, isn't it? हम लोग cubic unit cell discuss कर रहे हैं. Now, cubic unit cell के अंदर हमने just in cubic unit cell, what we have discussed, big learner here. There are 3 types of unit cell: simple cubic unit cell, also called as a primitive unit cell, body centered cubic unit cell, and face centered cubic unit cell. Last lecture we have seen simple cubic unit cell, and also we have discussed some part of body centered cubic unit cell. You may be able to recall. In simple cubic unit cell, or whatever it may be, a body centered cubic unit cell, we have to discuss under it 4 heads. Head number 1 is making of the unit cell. Head number 2 is a coordination number. Head number 3 is nothing but, you can say, number of atoms of which this unit cell is made up of. And last is nothing but, you can say, what is the space, or how much is the space acquired in this unit cell. That is what we have to discuss. ये हमें discuss करना है. कल के लेक्चर में हमने BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हमने डिस्कशन किया है. क्लियर विद दिस? और उसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में लास्ट टॉपिक था हमारा, दैट इज डेंसिटी. वो हमें डिराइव करना है, दैट इज द फार्मूला, और ये कोर कांसेप्ट हमारे चैप्टर का. ठीक है, सो वापस चलते हैं हम लोग उसी टॉपिक की तरफ, दैट इज, यू कैन से, स्पेस एक्वायर्ड इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. दुर्भाग्य से डायग्राम हमें वापस ड्रॉ करना पड़ेगा, अनलेस एंड अंटिल वी ड्रॉ द डायग्राम यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट दिस यूनिट सेल. ठीक है, सो लेट्स हैव डायग्राम उसको अंदर में निकालता हूं मैं. थोड़ा सा क्विक निकाल देंगे हम लोग. अभी थोड़ा सा उसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, सी दिस इज क्यूब. ओके, सो हमने क्यूब निकाला. नाउ we have to draw a 3D diagram. So 3D diagram के अंदर हम अच्छी तरह जानते हैं particles are present on the corners, and being it's BCC, we are talking about BCC, body centered cubic unit cell. So 8 particles are present on the 8 corners, and whereas 1 particle is present in the body of this cube. So we have to draw a diagram like that. So we have seen that. कल हमने diagram discuss किया था. Okay. So this is the front face. Front face के corner पे जो particles हैं हम निकालते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो ये फ्रंट फेस पे जो पार्टिकल है वो यहाँ पे आ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट, इस फेस के ऊपर डायग्राम देखते हैं कितने पार्टिकल्स हैं. ठीक है, ये डायग्राम. नाउ these are the particles which are present on the corners of this cube. क्यूब के कॉर्नर पे जो पार्टिकल है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया. नाउ इसके सेंटर में जो बल्क का पार्टिकल है वो यहाँ पे दिखाई देता है हम लोगों को, लाइक दिस. सो वी कैन सी दिस इज द पार्टिकल व्हिच इज प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ दिस क्यूब. सेंटर में दिखाई देता है. क्लियर विद दिस? नाउ सो दिस व्हाट वी हैव, ये हम लोगों को डायग्राम मिल जाता है. नाउ अभी देखिएगा, इस डायग्राम के अंदर हमें कैलकुलेट करना है कि हाउ मच स्पेस इज एक्वायर्ड, बिकॉज़ हम देखते हैं कॉर्नर पे पार्टिकल्स है, सेंटर में पार्टिकल, लेकिन बीच बीच में कह रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस एम्प्टी है. सो कल के इसमें देखा था हमने, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके अंदर भी पार्टिकल्स एक्वायर सम स्पेस एंड सम स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी. अभी बीसीसी के अंदर भी हमें देखना है. तो कल भी हमने इसके अंदर हेडिंग देखे थे, नंबर 1 मेकिंग, नंबर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बीसीसी, एंड लास्ट इज हाउ मच स्पेस इज एक्वायर्ड.
तो मेकिंग के अंदर हमने इतना देखा था, जस्ट 2 मिनट में रिवाइज करता हूँ. It has 8 corners. 8 particles are present on the 8 corners of the cube, whereas 1 particle is present in the bulk or center of this cube. So it has 12 faces, 6 faces, 12 edges, and 8 corners. This is what we are making. When we talk about the coordination number, तो हमने देखा था कि सेंट्रल में जो एटम प्रेजेंट है, सेंट्रल एटम जो इसके बल्क में बॉडी में प्रेजेंट है, this atom, this particle is in contact with 8 particles which are present on the 8 cube. So देखिए ये पार्टिकल जो फर्स्ट में दिखता है इनके टच में, दैट इज 4 particles in the above face and these 4 particles in the below face. So सेंटर वाला पार्टिकल 8 पार्टिकल को टच करता है. That's why coordination number must be 8. Coordination number must be 8. Now the thing is that when we are talking about the number of particles present in this BCC, how many particles are present in this BCC हम कैलकुलेट करते हैं. तो BCC के अंदर दो जगह से पार्टिकल आते हैं, कॉर्नर से और बल्क से. तो कॉर्नर का जो आता है हमने देखा कल 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है. एवरी पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर कंट्रीब्यूट्स 1/8, और ऐसे कितने कॉर्नर से 8. तो 8 into 1/8 is equal to 1. So one particle is from the corner, and this is the particle which is present in the center of this cube. Body of this cube contributes only in one unit cell. इसी यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, दूसरे किसी यूनिट सेल के अंदर वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है. And that's why this complete one particle is part of this unit cell. तो कॉर्नर से 1 और ये 1 कुल मिलाके 2 particles. तो BCC जो है वो 2 particles का बना हुआ है. Clear with this? Now अभी हमें डिस्कस करना है how much space is acquired and how much space is left empty. That is simply you can say in the format of density और packing efficiency हमें कैलकुलेट करना है. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए. Now ये तो हम लोग जानते हैं, this is the edge length A. ये क्यूब है, क्यूब का कंडीशन हम देखा है, A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. This condition already we have discussed. ये हम अच्छी तरह जानते हैं कंडीशन है उसके अंदर. So this is A, this is also A, this edge length. ये जो दिखता है आपको, this is also edge length A, and जो height दिखता है वो भी A है, because भले हम उसे C कहते हैं लेकिन सारा इक्वल होने के कारण A हम ले सकते हैं. अब देखिए थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको डेप्थ में देखना पड़ेगा. सपोज दिस इज क्वाड्रेचर A, दिस कॉर्नर इज क्वाड्रेचर B, दिस कॉर्नर इज क्वाड्रेचर C, ओके, और दिस कॉर्नर इज क्वाड्रेचर B, ओके, D होता है. ये ऐसे कॉर्नर हम लोग मानते हैं. अब देखिए ये जो फेस है, इधर का फेस, ये वाला फेस दिखता है, जो यहाँ पे दिखता है आपको, ये वाला फेस, ये फेस की हम लोग बात करते हैं, उस साइड का फेस, ठीक है, इस फेस की बात करते हैं. जो आपको यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम निकालता हूँ उसका, इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो ए फेस दिखाई दे रहा है, ठीक है. तो होता क्या है कि इसके अंदर ये जो पार्टिकल जिसे मैंने बिलो बी का, ये जो दिखता है वहां पे इस कॉर्नर को सी का और इस कॉर्नर को हमने डी का, ठीक है. अभी ए वाला ए है जो इधर दिखता है आपको, ये वाला भी ए है, बी इज अ क्यूब, और मैं यहाँ से डायगोनल पुट करता हूँ बस ये, ठीक है. ये उसी का जूम करके निकाला, यहाँ पर भी निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ से डायग्राम, ये देखिए, ये डायगोनल निकाला, ये डायगोनल निकाला, तो डायगोनल क्या हुआ, बी डी डायगोनल हुआ हमारा, ठीक है, ये हुआ. तो अभी हम लोग इसके अंदर एक पहला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं. वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर. ए एंड आर का रिलेशन में फाइंड आउट करना है, ओके, एंड फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे हाउ मच स्पेस इज एक्वायर्ड. सो फर्स्ट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड आर. रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस. सी, दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर and this is the A, edge length. This is the A to B is edge length A, and this is the radius. This is also radius. तो यहाँ पे एक स्पेस है, काफी एम्प्टी स्पेस है. तो ये कितना है हमें पता नहीं, इसलिए हम A और R का रिलेशन डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते. थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म यूज करेंगे. हाउ टू कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन A एंड R. A is the edge length, R is the radius of the sphere. हमने क्या किया, ये वाला जो फेस दिखता है वो फेस कंसीडर किया BCD ऐसा, और यहाँ पे देखिए दिस इज अ राइट एंगल 90 डिग्री है. तो यहाँ पे पॉइंट पे एक राइट एंगल मिलता है, मतलब जहाँ पे देखते हैं हम ये राइट एंगल है, ठीक है. अब ये डायग्राम टिल्टेड है, तो ऐसा मत समझिए कि दिस इज मोर देन 90 डिग्री, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट्स 90 डिग्री एक्चुअली, ठीक है. जो यहाँ पे दिखता है ये और ये यहाँ पे 90 डिग्री, वैसा ही ये है, ये और ये बस निकाला इस तरफ से, आप अलग एंगल से देख रहे हो, दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग. सो दिस इज वन. तो BCD ऐसा एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज़ यहाँ पे एंगल जो 90 डिग्री का है. सो consider a triangle, right triangle, that is you can say BCD, ऐसा हम कंसीडर करें BCD, ठीक है. अब ये जो डायगोनल निकाला हमने, इस डायगोनल को हम लोग ABCD होगा, E नाम देते हैं. चलो E नाम देते हैं उसको. ये जो डायगोनल निकाला उसको हमने E नाम दिया, इस लाइन को. ये A है, ये A है, ठीक है. According to Pythagoras theorem, being it's a right angle triangle, तो ये क्या होगा,
E square must be equal to BC square plus CD square. So what will happen here? So according to Pythagoras theorem, we'll have here BD square मतलब E square. BD square मतलब E square is equal to A square plus A square. A square. That means you can say twice A square. ये हम लोग को मिल जाएगा. So इसमें मिल जाता है. तो अगर हमें E निकालना है, so E is nothing but A square plus A square, two sides का square plus that मिल वो मिलता है आपको twice A square. This is what we get here. तो हम लोग को E square इस हिसाब से मिल जाता है. Clear? तो पहला E हमने यहाँ पे निकाला जिसका वैल्यू twice A square हम लोग को आ जाता है. साइड A साइड BD हमने निकाला जिसे हम E कहा है. So इसका वैल्यू हमने निकाला. Now अभी ट्रायंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं वापस. ट्रायंगल चेंज करते थे. ये B एंड यहाँ पे F लेते हैं. This is F. A B C D इसे E कहा था, इसे F कहते हैं हम लोग. तो this corner is A, this corner is B, this corner is F. ठीक है, ऐसा होता है. अभी यहाँ पे पीछे का कॉर्नर है हमारा D. ठीक है, तो यहाँ से सीधा D तक एक हम लोग डायगोनल पुट करें. सीधा D तक. अब देखिए यहाँ पे F पॉइंट फ्रंट में है, F पॉइंट फ्रंट पे और D पॉइंट बैक एंड में है. तो हम सीधा A से D पॉइंट ऐसा एक डायगोनल निकाल रहे हैं. सो ये फ्रंट फेस है हमारा A B F और इधर जो पॉइंट होगा वो हमारा फ्रंट फेस है. फ्रंट फेस पे हम नहीं निकाल रहे हैं. A फ्रंट फेस का लोअर कॉर्नर है और D बैक फेस का अपर कॉर्नर है. D बैक फेस का अपर कॉर्नर है. तो वहां से डायगोनल निकालते हैं हम लोग सीधा. तो यहां से डायगोनल इधर तक आएगा लाइक दिस. ये डायगोनल आएगा. ठीक है, इसे हम लोग G कहते हैं, जो भी हमने नाम दिया इसको G नाम दिया. अब देखिए हमारा ट्रायंगल एक बनता है, नया ट्रायंगल बन गया A से लेकर B तक और B से ये डायगोनल जो हमने इसको E नाम दिया था, इधर देखिए E नाम दिया था. सो दिस इज E. सो ये A B D ऐसा ट्रायंगल बना. दिस इज ये ट्रायंगल बना. इसके अंदर का ये A साइड है, ये हमारा ऑलरेडी डायगोनल जो इस प्लेन में आता है और ये एक डायगोनल जो इस ट्रायंगल को है और ये ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. अब देखिए दोनों फेसेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस दोनों एट 90 डिग्री है. दोनों एट 90 डिग्री. तो दोनों में कोई भी लाइन आप निकालो वो एक दूसरे को 90 डिग्री में होगा, बिकॉज़ बोथ फेसेस आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर. और दोनों 90 डिग्री में होने के कारण दोनों में कौन सा भी लाइन ड्रॉ करो उसके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का ही होगा, बिकॉज़ हम लाइन फेस पे निकालेंगे. क्लियर? सो दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड एंगल हैज टू बी 90 डिग्री. नया ट्रायंगल बनता है. लेट्स कंसीडर ट्रायंगल ABD which is a right triangle. ट्रायंगल ABD ऐसा ट्रायंगल बनता है. ठीक है, ABD ऐसा ट्रायंगल हम लोग को बना. अब इस ट्रायंगल को भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज़ बीइंग इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है. तो दिस साइड AB is A, BD is E और AD is G ऐसा होता है. ये साइड, दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस ट्रायंगल. ये डायगोनल है ट्रायंगल का. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा फिर होगा G स्क्वायर इज इक्वल टू G स्क्वायर, ये जो डायगोनल है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हियर A स्क्वायर प्लस E स्क्वायर. E स्क्वायर रहेगा, E स्क्वायर रहेगा, E स्क्वायर जो हमने यहाँ पे निकाला था. क्लियर विद दिस? सो दिस इज द न्यू ट्रायंगल व्हाट वी गेट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, राइट ट्रायंगल G स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस E स्क्वायर. आपके बुक में नोटेशन अलग हो सकते हैं, हम नोटेशन अलग लेंगे. हम बेसिक पाइथागोरस का थ्योरम जानते हैं. द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू समेशन मतलब सम ऑफ द टू साइड स्क्वायर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. सो अकॉर्डिंग टू दिस G स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, ये हम लोगों को मिल जाता है. ठीक है, अब इस डायग्राम को मैं इरेज करता हूं. ये बस उसी फेस का हमारा एक्सटेंशन था. ठीक है, तो E स्क्वायर का वैल्यू तो हम जानते हैं. सो सपोज दिस इज 1, दिस इक्वेशन नंबर 2. कैन वी पुट दिस इक्वेशन 1 इन 2? E स्क्वायर का वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस E स्क्वायर का वैल्यू है twice A स्क्वायर, will become thrice A स्क्वायर. ये हम लोगों को वैल्यू मिल जाता है. Remember this? So we got this the value of G square is equal to thrice A square. अभी देखिए G square कौन है? G square ये है. G square ये हमारा. ठीक है. Now we got this one. This G. G अभी देखिए थोड़ा सा इसके अंदर इमेजिन कीजिए कि G होगा कितना. G कितना हो सकता है. अभी देखिए this is the R. This is the particle. This is the particle where R यहां से लेकर इधर तक आ रही है. ये फ्रंट फेस का पार्टिकल है, लोअर कॉर्नर. ये जो पार्टिकल एग्जैक्टली उसके ऊपर थोड़ा सा पीछे है और ये पार्टिकल कंसीडर करना नहीं, बिकॉज़ ये फ्रंट फेस पे, हमें ये पार्टिकल कंसीडर करना है उसके जो बैक फेस पे. तो ये देखिए इसका ये रेडियस इस तरीके से चला जाता है, इस तरीके से रेडियस है. तो यहां से ये डिस्टेंस R है. ठीक है, जो इसे यहां पे टच करता है बैक में.
और यहाँ से ये ट्वाइस आर है बिकॉज ये पूरा उसका डायमीटर है पूरे स्फीयर का, लाइक दैट। सो 2d है, तो 2r है, ये r है और ये कैन से r है, तो दिस g इज नथिंग बट यू कैन से 4r। so this you can say g is equal to क्या आ रहा है आपका 4r। so g is equal to 4r, g is nothing but the 4r, so we can say putting this one, so what we get here 4r is equal to thrice a square हम लोगों को मिल जाता है, thrice a square मिल जाता है। so अगर r is equal to निकाला, r is equal to thrice a square upon 4 हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। अगर हम लोग रूट लेते हैं, सॉरी यहाँ पे जी स्क्वायर है ना, सॉरी जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर, जी का वैल्यू 4r है, तो यहाँ पे क्या होगा 4r स्क्वायर होगा, तो 4r स्क्वायर कितना होगा देन 4r स्क्वायर 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 16, तो r इज इक्वल अभी हमें रूट लेना है, r इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे रूट ऑफ 3 आएगा, रूट ऑफ 3 a वैसे आएगा और 16 का रूट आएगा 4, वी गॉट दिस वन, so we got the relation r is equal to root 3a upon 4, this is the relation between this, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, a is equal to 4r upon root 3, this is the relation between a and r, a and जो हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर भी कैलकुलेट किया था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर भी कैलकुलेट किया था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन a एंड r। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे, तो r और a का रिलेशन सीधा ट्वाइस r था, a और r का भी रिलेशन था, a इज इक्वल टू ट्वाइस r। इसके अंदर फर्क क्या है, देखिए इसके अंदर फर्क ये है, दैट इज r इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3, a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3, फिर r इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 into a, इस टाइप का रिलेशन हम लोग को मिल जाता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, वी गॉट इट, ये पहला स्टेप था। तीनों इसके अंदर, तीनों यूनिट सेल के अंदर, अगर हमारा वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी क्यों ना हो या फिर हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल भी क्यों ना हो, उसके अंदर ये रिलेशन पहले डिराइव करना पड़ता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज डन। नाउ वी हैव टू, और ये रिलेशन डिराइव करने के लिए वी हैव टू हैव दिस 3D डायग्राम। वापस एक बार देखिएगा, 3D डायग्राम के अंदर हमने क्या किया, बीइंग इट्स बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ये हमारा फ्रंट फेस है, ये हमारा साइड फेस है। पहले हमने ये सारे जो कॉर्नर पॉइंट्स है उसको नाम दिए A B C D F, ऐसे नाम हमने दिए, और ये क्यूब होने के कारण राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, तो पहला ट्रायंगल कंसीडर किया BCD, और यहाँ पे डायगोनल निकाला व्हिच इज BD, जिसको हमने E नाम दिया। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बीइंग इट इज राइट एंगल ओवर हियर, दैट इज 90 डिग्री, side square is equal to sum of side square of this right angle triangle, so a square plus a square, b square is equal to a square मिल गया, तो we got the value of e। now हमने a से लेकर सीधा d पॉइंट तक, d is a back face का कॉर्नर है और a फ्रंट फेस का लोअर कॉर्नर है, ये एक डायगोनल पुट किया हमने, और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला a b d, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, इससे e का वैल्यू पता था, यहाँ पे a है और हमने यहाँ का वैल्यू निकाला, इस वैल्यू को हमने निकाला, और ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पे, and then we have put the value and finally we got this relation between a and r, clear with this? So we got the relation between a and r, a is equal to 4r upon root 3, या फिर r is equal to root 3a upon 4, that is the relation between a and r, ये अभी याद रखिए कि हम लोग को मिल गया, clear? now we have to find out how much space is required and how much space is left empty, that is what we have to calculate, ठीक है, ठीक है, ऐसा रखा। और देखिए how much space is required, density, we have to calculate the density, okay। now let's move one, density का फॉर्मूला हम जानते हैं, density of this cubic unit cell is equal to mass of unit cell upon volume of unit cell। लेकिन कल ही हमने देखा कि इस तरीके से इसका डेंसिटी निकालने जाएंगे तो प्रॉब्लम आता है कि वी डोंट नो ये जो पार्टिकल्स है कौन से पार्टिकल, उनका मास हमें पता नहीं, उस तरीके से हम डेंसिटी नहीं निकालते, तो हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, हाउ मच स्पेस इज एक्वायर्ड एंड हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी, इस फॉर्मेट में हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पूरा यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल, तो जनरल फॉर्मूला है ना, सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू L क्यूब, और L क्या है, A, दैट बिकम्स A क्यूब, हम लोग को मिल जाता है। अभी A का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला, A का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला, सो A का वैल्यू क्या आपने देखिए, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो A क्यूब इज इक्वल टू, ये वैल्यू है 4r अपॉन रूट 3, उसका क्यूब बनेगा,
उसका क्यूब बनेगा। तो ये कितना आएगा 64 r क्यूब अपॉन 3 इंटू रूट 3 कितना आएगा, क्लियर, 3 इंटू रूट 3 आएगा। सो दैट इज व्हाट वी गेट हियर, ये वैल्यू हम लोग को उसके अंदर मिल जाता है, क्लियर ना। ना ना सेकंड हम चलते हैं, ये जो यूनिट सेल है, वी गॉट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबिक यूनिट सेल इज 64 r क्यूब अपॉन 3 रूट 3, इतना हम लोग को मिल गया। नाउ ये यूनिट सेल कितने पार्टिकल का बना हुआ है, दिस यूनिट सेल इज मेड ऑफ हाउ मेनी पार्टिकल्स, हम अच्छी तरह जानते हैं 2 पार्टिकल्स, कॉर्नर से एक और बॉडी में एक। और वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर हम जानते हैं, सो जनरल फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। बट अभी यहाँ पे दिस यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ 2 particles, this unit cell is made up of 2 particles, that's why volume of 2 spheres, volume of 2 spheres, this unit cell is made up of 2 spheres, ये corners के और इसके, and that's why volume of single sphere is given by 4/3 pi r cube, so volume of 2 spheres will be given by 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8/3 pi r cube ये मिल रहा है हमको, this is the volume of 2 sphere, 2 से इसे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 4/3 पाई r स्क्वायर हो सकता है या फिर 8/3 पाई r क्यूब हो सकता है, r क्यूब, इतना हमको मिल जाएगा। गॉट इट। नाउ इस यूनिट सेल के अंदर एक्चुअल वॉल्यूम कितना है, इतना है, एक्चुअल वॉल्यूम इतना है, बट पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम एक्वायर किया 8 पाई r क्यूब अपॉन 3 कितना वॉल्यूम एक्वायर किया, क्लियर दिस। तो अभी हाउ मच स्पेस इज एक्वायर्ड, हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा देखिए, व्हाट विल डू हियर, सो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कल भी किया था। वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है 64 r क्यूब अपॉन 3 रूट 3 counts to be 100%, this counts to be 100%, so the volume acquired by these two particles 8 pi r cube upon 3 counts to be x%, वो कितना काउंट कर रहे हैं हम लोग x% ऐसा हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो अभी देखिए उससे सॉल्व करते तो कितना, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x is equal to x is multiplied by this one, this multiplied by this one, तो ये क्या होगा 8 pi r cube upon 3 into 100 upon 1 into ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये x के साथ है उस तरफ चला जाएगा तो इट विल बिकम 3 रूट 3 अपॉन 64 r क्यूब, ऐसा बनेगा। देखिए ये दोनों क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी है सेकंड क्वांटिटी है, मतलब दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब काउंट्स टू बी 100%, क्यूब का वॉल्यूम 100% है, आउट ऑफ दैट सम वॉल्यूम इज एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल, तो पार्टिकल का, दो पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होता है 8 pi r cube upon 3 counts to be x%, x% है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x is multiplied by this one and this is multiplied by this quantity, so finally we got this one, that is x is equal to 8 pi r cube upon 3 into 100 upon 1 into 3 root 3 upon 64 r cube, यहाँ पे r cube चला जाता है, ठीक है, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। अभी रूट 3 का वैल्यू जानते हो, पाई का वैल्यू जानते हो 3.14, ये सारे वैल्यूज पुट करो और ये कैलकुलेट करो तो इट विल कम टू x इक्वल टू 68%, इतना आएगा, 68% स्पेस इज एक्वायर्ड। कल के इसमें हमारा वैल्यू आया था 52%। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है इसके अंदर जो वैल्यू एक्वायर होता है दैट इज लाइक 52.4%, और व्हेन इट इज अ बीसीसी इसके अंदर वैल्यू होता है 68%। आप कैलकुलेट कीजिएगा, मतलब ये वैल्यू मैंने रखा है बट आप ये कैलकुलेट कीजिएगा, ये सारे वैल्यूज यहाँ पे दिए हैं। पाई का वैल्यू आप जानते हो 3.14 पुट करना है, और यहाँ पे रूट 3 का वैल्यू भी आप जानते हो वो यहाँ पे पुट करना है, एंड सारा कैलकुलेट करो, दैट विल कम अराउंड 68%। तो इसका मतलब ये है when any solid is made up by this body centered cubic unit cell, whenever any solid is made up by body centered cubic unit cell, then the space acquired by the particle is actually 68%। तो कितना परसेंट अभी एम्प्टी बचता है, ऑलमोस्ट 32%, ऑलमोस्ट 32% अभी भी स्पेस उसके अंदर बाकी है जो एम्प्टी स्पेस होता है। वही अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर तो स्पेस एक्वायर इज 52.4%, रिमेनिंग जो स्पेस है ऑलमोस्ट 48%, 47.3 इतना स्पेस उसके अंदर एम्प्टी होता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से अगर कोई सॉलिड बनता है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 50% स्पेस एम्प्टी होता है, और कोई भी सॉलिड इससे जब बनता है तो बीसीसी के अंदर उसके अंदर 68% स्पेस एक्वायर होता है और रिमेनिंग 32% एम्प्टी होता है। तो आप देखिए सॉलिड जो बनते हैं
सॉलिड के अंदर डेंसिटी कितना रहेगा, वो सब इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर विद दिस? सो दैट इज व्हाट वी कैन से, ये हमारे पास जानते थे बीसीसी। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन और डिराइव द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स। Derive the relation between A and R. A is the edge length, R is the radius of the sphere. इनके बीच का रिलेशन डिराइव करो। हो सकता है बीसीसी के लिए, हो सकता है एससीसी के लिए, ओके, हो सकता है एफसीसी के लिए। हमने दो डिराइव किए हैं, एससीसी एंड बीसीसी, हमारा एफसीसी अभी भी बाकी है। क्लियर? मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले आप 10 साल की बोर्ड के पेपर निकाल के देखते हो तो 10 में से कम 7 से 8 बार ए और आर का रिलेशन पूछा गया है। तीनों सेल में से किसी का भी पूछा जाए, बट पूछा जाता जरूर है। तो इसीलिए कोई भी एक अच्छी तरह समझा तो दूसरा हमें समझने में थोड़ा सा आसानी होती है। क्लियर विद अस? सो होप सो यू गॉट इट। दैट इज यू कैन से बीसीसी। तो हमारे दो यूनिट सेल्स हो गए। पहला था हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा था हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और दोनों सेल्स को हमने 4 हेड्स के अंदर डिस्कस किया। नंबर 1 मेकिंग ऑफ यूनिट सेल, नंबर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर 3 you can say number of atoms present in this unit cell, and number last is nothing but you can say what is or how much space is required, how much space is left empty. सिंपल क्यूबिक के अंदर 52.4% है, इसके अंदर 68% एक्वायर्ड है, बाकी एम्प्टी है। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू थर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, सो okay, so third one or last one, FCC, face centered cubic unit cell, face centered cubic unit cell। और इस सेल को भी वापस वही 4 हेड्स के अंदर हमें डिस्कस करना है। मेकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ एटम्स एंड स्पेस एक्वायर्ड। ठीक है, सो लेट्स गो टू फर्स्ट, दैट इज यू कैन से मेकिंग, नंबर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर 3 number of atoms present in this, and number 4 is nothing but density, density of space acquired, 4 heads। ठीक है ना, उसके लिए हमें डायग्राम जरूरी है। सो लेट्स हैव द डायग्राम हियर, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का। ओके, सो दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल। कंडीशन वही रहेगा, a is equal to b is equal to c, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री। 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं। ये डायग्राम मैंने पहले भी ड्रॉ किया था। ओके, meaning it has 8 corners, 8 particles are present on the 8 corners of the cube, number 1। number 2, नाम क्या बता रहा है? face centered cubic unit cell। it has 6 faces and 6 particles are present on 6 face of this cube। इस क्यूब के हर फेस पे आपको एक पार्टिकल मिलता है। सो अब देखिए, ये पहला फेस बात करते हैं, दैट इज राइट वर्ड की। तो इस फेस के सेंटर में एक पार्टिकल दिखाई देता है आपको, स्फीयर। लेफ्ट वर्ड में उसके सेंटर में एक पार्टिकल दिखाई देता है। ओके, 2 हो गए। फिर टॉप एंड बॉटम, टॉप के सेंटर में एक पार्टिकल और बॉटम के सेंटर में एक पार्टिकल, लाइक दिस, ये हम लोगों को मिलता है। क्लियर विद दिस? अभी 2 ही बचे। देखिए, दिस क्यूब हैज अ 6 फेस, लेफ्ट, यस, राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम। अभी 2 बचे, फ्रंट एंड बैक। फ्रंट एंड बैक लास्ट इसलिए बिकॉज वो फेस कंसीडर कीजिएगा, दिस इज अ फ्रंट फेस, सो इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, और दिस इज अ बैक फेस, इसका सेंटर समवेयर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी जितना प्रॉपरली इमेजिन करेंगे उतना प्रॉपरली आपको फेस के ऊपर वो पार्टिकल दिखाई देगा। जितना प्रॉपरली इमेजिन नहीं करेंगे उतना वो पार्टिकल आपको नहीं दिखाई देगा। क्लियर विद दिस? सो दैट इज व्हाट वी कैन से। सो दिस इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसका डायग्राम। अभी पहला पॉइंट, मेकिंग। मेकिंग के अंदर वापस वही पॉइंट आएंगे जितने हम लिखते हैं। सबसे पहला, being this cube has the condition, क्या कंडीशन है हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। a is equal to b is equal to c, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree। so this is what we can say, ये हम लोग को उसके अंदर मिल जाता है। क्लियर ना? दूसरा पॉइंट आता है, it has 8 corners and 8 particles are present on the 8 corners of this cube। point number next, particles are present on the face, each face of this cube। So how many faces this cube has? This cube has 6 faces. So 6 particles are present on the 6 faces of this cube। It's very important। देखिए सबके अंदर अलग अलग आता है। एक पॉइंट, पहला पॉइंट कॉमन था सबके अंदर, 8 corners 8 particles।
बट सिंपल क्यूबिक के अंदर उतना ही था। बीसीसी के अंदर एक पार्टिकल सेंटर में प्रेजेंट है और एफसीसी के अंदर हर फेस पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है, हर फेस पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हर फेस को आपके एक पार्टिकल दिखाई देता है। ओके, so one particle is present on each face of this cube, and that's why it is called a face-centered cubic unit cell. That's all for the making. Now we have to discuss coordination number, or we have to discuss number of atoms present in this unit cell. But when we have to have discuss this one, ये तीनों पॉइंट डिस्कस करने, तो उसके लिए हमें 3D डायग्राम की जरूरत है फेस सेंटर की। ठीक है, तो फेस सेंटर का 3D डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर ये तीनों पॉइंट उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले दो समझे तो बहुत इजी जाएगा। Play with this. So let's move to 3D diagram. यहाँ पे बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है कि 3D डायग्राम कैसे ड्रॉ करें। इजी एक्चुअली, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, ये तो डायग्राम काफी मस्त है। ठीक है, सो दिस व्हाट वी कैन से सिंपल क्यूब हमारा हो गया। नाउ इस क्यूब के अंदर कॉर्नर पे तो पार्टिकल है ही है, लेकिन फेस पे भी पार्टिकल प्रेजेंट होता है, हर फेस पे पार्टिकल प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई वो बहुत अच्छी तरह ड्रॉ करना पड़ेगा हमको डायग्राम। तो पहले हम लोग ऐसे करते हैं, इसका जो ये जो फ्रंट फेस है, ये देखिए, ये हमारा फ्रंट फेस है। पहले फेस कंसीडर कीजिएगा, दिस आर फ्रंट फेस, और इस फ्रंट फेस के अंदर हम लोग पार्टिकल ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेंटर में फेस पे जो पार्टिकल दिखाई देता है, उस पार्टिकल को हम लोग ड्रॉ करते हैं। See, this is the particle which is present on the front face of this cube. ये front face का particle दिखाई देता है। ठीक है, ये front face का particle हो गया, front face पे particle हो गया। Now ये corner का particle ही इस तरीके से रहेगा, जस्ट टच होगा यहाँ पे, इस तरीके से होगा। इस कॉर्नर का पार्टिकल इस तरीके से टच करेगा, ये कॉर्नर का पार्टिकल इस तरीके से टच करेगा, और इस कॉर्नर का पार्टिकल इस तरीके से टच करेगा, लाइक दिस। ये बना, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे होगा, इस फेस में। ठीक है, लाइक दिस, क्लियर। अब देखिए, जिस तरीके से फ्रंट फेस पे पार्टिकल दिखाई देता है, उसी तरीके से इस फेस में भी पार्टिकल दिखाई देता है। इस फेस का पार्टिकल अगर देखते हैं हम लोग, तो लाइक इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये यहाँ से आएगा और ऑलमोस्ट यहाँ से इस तरीके से वापस इसके अंदर जाएगा। ये देखिए, इसका हाफ पार्ट दिख रहा है इस तरीके से, ये सामने दिख रहा है, क्लियर। उसी तरीके से अपर फेस पे भी पार्टिकल दिखाई देगा, लाइक दिस। ये अपर फेस का पार्टिकल है जो यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे होगा, लाइक दिस। इस तरीके से आएगा। अब देखिएगा, दिस व्हाट कैन से। तो यहाँ पे आपको इस क्यूब के तीन फेस क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा इमेजिनेशन भी करना पड़ेगा। दिस यू कैन से फ्रंट फेस, फ्रंट फेस पे ये पार्टिकल दिखता है। दिस इज द राइट वर्ड फेस, इस पे ये पार्टिकल दिखता है जो सेंटर में है। अपर फेस पे ये पार्टिकल दिखता है, लोअर फेस दिखाई नहीं देगा, और इस साइड का फेस भी दिखाई नहीं देगा। ओके, सो लोअर फेस और ये दो फेस यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे हम लोगों को, ये हम लोग देख सकते हैं। सो ये फेस देखते हैं, उसके पीछे का फेस हम लोग नहीं देख सकते। तो आउट ऑफ दिस 6 फेसेस वी कैन सी द 3 फेस, बट तीन फेसेस हम लोग नहीं देख सकते। दैट यू हैव टू इमेजिन। मॉडल्स देखेंगे तो काफी अच्छा होता है, लेकिन इमेजिन तो पूरा एटलीस्ट इस तरीके से होता है। This is 3D diagram for face centered cubic unit cell. Face centered cubic unit cell 3D diagram. Clear? Now, 3 points is पहला पॉइंट डिस्कस करना है उसके बारे में, there is you can say coordination number,
दूसरा पॉइंट डिस्कस करना है इसके अंदर, देयर इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल, और तीसरा पॉइंट डिस्कस करना है स्पेस एक्वायर्ड। ठीक है, तो पहले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर, अब देखिए यहाँ पे ये फेस पे पार्टिकल देखते हैं, ये फेस का पार्टिकल, ये फेस का पार्टिकल उसी फेस के अंदर 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 और ये 4, चार पार्टिकल के साथ वो सीधा कनेक्टेड है, चार पार्टिकल के साथ सीधा कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ ये पार्टिकल, जैसे देख यहाँ पे देखिए, ये पार्टिकल देखिए, ये पार्टिकल आधा इसके अंदर आता है और आधा सामने वाले यूनिट सेल के अंदर आता है। जो पार्टिकल फेस पे प्रेजेंट है वो आधा आता है, जैसे कि हमारे, जैसे मैंने कल बताया कि हम लोग फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में कॉमन वॉल होता है, आधा वॉल उनका है, आधा वॉल हमारा है ना। उसी तरीके से ये जो पार्टिकल है जो फेस पे प्रेजेंट है, फेस का पार्टिकल आधा इस यूनिट सेल के अंदर दिखता है आपको, देखिए ये दिखता है इसका कर्व, और इस तरफ आधा है, सामने वाले यूनिट सेल के अंदर आधा दिखता है। तो ये फ्रंट का भी वही है, आधा इसके अंदर है, आधा सामने के यूनिट सेल के अंदर है। तो हर फेस का पार्टिकल 1/2 कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि हर फेस का पार्टिकल दो यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा, एक इसके और इसके सामने वाले, इसमें इसके सामने वाले। सो हर फेस का पार्टिकल, क्योंकि जो पार्टिकल फेस पे प्रेजेंट है तो आधा एक यूनिट सेल में होगा, आधा दूसरा यूनिट सेल में होगा। और कॉर्नर का पार्टिकल तो हम अच्छी तरह जानते हैं, कॉर्नर का पार्टिकल होता है 1/8 कंट्रीब्यूशन, कोई भी कॉर्नर, तीनों यूनिट सेल के अंदर। The particle which is present on the corner of this cube contributes in 8 unit cell. So its contribution is 1 unit cell is 1/8. So उस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। So कॉर्नर का पार्टिकल 1/8 होता है और एक फेस का जो पार्टिकल होता है 1/2 होता है, 1/2। तो इसीलिए ये देखिएगा कि ये पार्टिकल इसी फेस में 1 2 3 4 चार पार्टिकल के साथ सीधा कनेक्टेड है। उसके अलावा ये पार्टिकल इसे भी टच करता है जो इस फेस का पार्टिकल है, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, इधर थर्ड फेस, या फिर फोर्थ फेस, चारों फेस के पार्टिकल को टच करता है। सो ये चार बन गए, 5 6 7 और 8। ये मतलब इस बैक फेस का उसे टच नहीं कर पाएगा, बैक फेस का पार्टिकल उसे टच नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई इसी प्लेन में 1 2 3 4 और दूसरे फेसेस के 1 2 3 4 कुल मिला के 8 पार्टिकल्स हो गए। जिस तरीके से इस पार्टिकल को इस फेस का पार्टिकल टच कर सकता है, जो ये देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, उसी तरीके से सामने के यूनिट सेल के भी 4 पार्टिकल्स आएंगे। तो प्लेन में 4 प्लस बैक फेस के 4 प्लस फ्रंट फेस के 4 कुल मिला के 12। कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी 12। कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी 12। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके सामने, एक ऑप्शन है कि सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 लर्न करें। एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, आप लर्न कर सकते हो सीधा, पहली बात। दूसरी बात है अंडरस्टैंडिंग पैटर्न पे जाएंगे, इस डायग्राम के अंदर अंडरस्टैंड करना है कि फेस का पार्टिकल किस तरीके से 12 इसको टच करता है। उसी प्लेन में चार पार्टिकल्स को, उसके पीछे के फेसेस के चार पार्टिकल और फ्रंट फेस के चार पार्टिकल, कुल मिला के 12 पार्टिकल्स के ये कॉन्टैक्ट में होता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। और कोऑर्डिनेशन नंबर का रेफरेंस हमने कल ही देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ एटम्स विद व्हिच एनी पार्टिकल इज इन कांटेक्ट विद। किसी भी यूनिट सेल के अंदर का पार्टिकल कितने पार्टिकल के कांटेक्ट में, दैट इज कॉल्ड एज कैन से कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर विद दिस? सो ये हमारा उसके अंदर का कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस वन। सो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो हमें डिस्कस करना है। तो पहला फ्रॉम कॉर्नर्स, कॉर्नर्स मतलब ये कॉर्नर्स, कॉर्नर को कंट्रीब्यूशन आप अच्छी तरह जानते हो। अभी कॉर्नर से 8 into 1/8 is equal to 1 atom आता है। There are 8 corners और contribution is 1/8, तो 8 into 1/8 is equal to 1 atom। दूसरा from face, from face, face मतलब ये फेस का पार्टिकल, यहाँ पे बताया ये फेस का पार्टिकल देखिए, ये इसका कर्व दिखता है, यहाँ पे दिखता है ये कर्व। तो ये पार्टिकल आधा इस यूनिट सेल के अंदर है, आधा उसके सामने यूनिट सेल के अंदर है। ये दो ही यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है। द पार्टिकल व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द फेस ऑफ द क्यूब कैन कंट्रीब्यूट इन ओनली 2 यूनिट सेल्स, half in first unit cell, half in another second unit cell. So that's why its contribution is 1/2. Contribution is 1/2 into कितने फेस है इस क्यूब को? This cube has 6 face, so that's why it comes to 3 atoms. टोटल अगर बात करते हैं, टोटल एटम्स, तो कॉर्नर से आता है 1 एटम और फेस से आते हैं 3 एटम, कुल मिला के 4 एटम्स, 4 atoms. So you can say this unit cell is made up of 4 atoms. For मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ 4 atoms. आप देखिए सीक्वेंस देखिए आप लोग, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ ओनली 1 atom.
BCC, body centered cubic unit cell, is made up of two atoms, whereas this FCC is made up of 4 atoms. Unit cell है cubic, लेकिन बना है 4 atoms का. So that is the difference you can say. तो 3 point हो गए इसके बारे में. Number 1 point है हमारा, that is you can say making. Number 2 point is coordination number, और number 3 point is nothing but the number of atoms present in this unit cell. Atom कहाँ से आते हैं? Corner से 1 atom और faces से 3 atom. कुल मिला के 4 atoms का ये face centered cubic unit cell बना हुआ है. जबरदस्त. The last point इसके बारे में जो बचता है, that is nothing but you can say relation between A and R and space acquired. So we'll see in next lecture. Thank you very much. See you tomorrow. Good night, everybody.